Welcome to Health Commune, Dr. Sneha. Thank you so much for your time today. And I'm Dr. Smita, and I'm a founder of Health Commune. I'm MBBS MD in pharmacology, but I do all the work that I do. I have a company, and then Health Commune is the initiative when we are focusing on health literacy as a platform. We want people to understand about their health. And that's why we need doctors to actually come and talk to us about the topics that we are sharing. So, first of all, welcome on the show. Yeah, hi, Dr. Smita. Thank you for inviting me. So, I'm Dr. Sneha Garg. I'm an interventional cardiologist. Right now, I'm practicing at Max Super Speciality Hospital, Saket, New Delhi. I'm in Delhi since last 2.5 years, but I have a cardiology experience of over 8 years. Okay. And I am the first female independent TAVI operator of the country, certified by Edward Life Sciences. So that really focuses my attention towards the heart diseases and especially women, Yes. that is one aspect of, because my branch as a cardiologist, we see less women doctors also. And so that is a problem. And interventional cardiologists, you can really count on your fingers. Only these many are present in our country. Correct. So it's a great initiative that you have invited me to talk on women and heart diseases. Yes. Before we get into the topic that we want to discuss, ki women and heart disease, intervention cardiologist क्या होते हैं और what treatment do they take care? Cardiac surgeon, cardiologist, or intervention cardiologist. These are the three terminologies, right? So how they are different? What exactly they do? Yeah, thanks. That's a very good question. So basically, cardiology is a branch जिसमें हम medicine से deal करते हैं and echo करते हैं, and then there is a speciality of cardiology is interventional cardiology. So there we can put stents. Intervention means आप कुछ कर रहे हैं, मतलब you are actively doing something, जैसे stents, pacemakers, और किसी को हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाता है तो अब्लेशन करना, एंड वाल्व्स जो होते हैं उनको चेंज करना. सो नाउ वी कैन चेंज द वाल्व्स विदाउट ओपनिंग द हार्ट. सो all that is done by interventional cardiologist. And then there are cardiac surgeons. So cardiac surgeons have a basic degree of surgery and then they do a cardiac surgery. And cardiac surgery is, as we all know in common language, bypass surgery. Mm-hmm. So it's an open heart surgery, and they are specialists. They are different specialists. So as if you see in normal terms, जैसे surgery में laparoscopic surgery होती है and then open surgery होती है, like that interventional cardiologists treat your problems and you are awake during the procedure. जी. And it's a quicker recovery, but then all things we cannot do. So that is why every branch is very important. करेक्ट. तो एक मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि इन इंडिया, स्पेशली इन इंडिया, ऐसे कि हार्ट डिसीजेस जो है वो मेन को होते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं और उनको काम का टेंशन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो वो सारा स्ट्रेस उनके कार्डियक कंडीशन पे आती है और उनको हार्ट अटैक होता है. विमेन और हार्ट डिसीज, विमेन को लगता है कि अच्छा ठीक है हमको बाकी बीमारियां होती है लेकिन हार्ट अटैक या ऐसी चीजें विमेन को नहीं होती है, ऐसे अगर नॉर्मली माना जाता है. तो ये कितना सच है? आई थिंक ये आपका मिथ बस्टर वाला स्लाइड बन सकता है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है. विमेन का जो बायोलॉजी होता है वो बहुत अलग होता है. सो हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है. सो 15 to 45 ईयर्स हमारा रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होता है. उस टाइम हमारे हॉर्मोन्स आर प्रोटेक्टिव फॉर हार्ट डिजीजेस. लेकिन जैसे ही 45-50 मेनोपॉज स्टार्ट होता है, उस एज में होते ही जो भी वो 15 से 45 साल का जो एज ग्रुप है, अगर उसमें आप किसी रिस्क फैक्टर पे हो, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी इटसेल्फ, आई विल टर्म इट एज अ स्ट्रेस टेस्ट, कार्डिक स्ट्रेस टेस्ट. प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेस टेस्ट फॉर वुमेन क्योंकि आपका बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस. आप बॉडी को जो नॉर्मली काम करना पड़ता है वो ज्यादा काम करना पड़ता है. सो उस टाइम पे जो हार्ट डिजीजेज होती है वो अनकवर होती हैं. और जैसे प्रेगनेंसी सेटल होती है वो हार्ट डिजीजेज नॉर्मल हो जाती हैं. तो सबको लगता है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से हुई है. लेकिन जैसे ही एक विमेन मेनोपॉज पे पहुंचती है, वैसे ही आपको पता चलता है कि वो प्रॉब्लम थी. फॉर एग्जाम्पल बीपी. बहुत ऐसी लेडीज होती हैं जिनको बीपी होता है प्रेगनेंसी में, एंड जैसे प्रेगनेंसी ठीक होती है बीपी ठीक हो जाता है. बट देन दोज विमेन आर 2 times at a higher risk of developing blood pressure after the age. And also आजकल मतलब when we were growing up, हमने इतना PCOS सुना है, ठीक है, बट our mothers did not have PCOS, right?
एंड इन देयर जनरेशन पीसीओएस इतना था नहीं. सो पीसीओएस इज अ मेटाबॉलिक कंडीशन. जी हाँ. एंड ओवर टाइम हम लोग ये देख रहे हैं हमारी प्रैक्टिस में कि जिन लेडीज को पीसीओएस हो रहा है, जिनको था इनके टीनेज इयर्स में या फिर अर्ली ग्रोइंग अप में, सो उनका लिपिड प्रोफाइल थोड़ा डिरेंज्ड है, देयर इज ओबेसिटी, देयर आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, उनके अंदर भी हार्ट डिजीज का रिस्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीपल हु डोंट हैव इट. सो ऑल आर जेन जी इज वॉचिंग दिस. सो इफ यू हैव पीसीओएस, get a test, you know, get a basic lipid profile, and वो चीज हमें normalize करनी पड़ेगी ताकि आपको जब आप 40 के हो या 50 के हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट करेक्ट. विमेन जो है उनको पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल इसमें हार्ट डिसीजेस, तो कौन से हार्ट डिसीजेस उनको ज्यादा मैनिफेस्ट होते हैं आफ्टर पेरीमेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज? सो एक तो सबसे पहले हम ड्यूरिंग योर रिप्रोडक्टिव एज ऑल्सो, अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, देन ऑल्सो यू कैन हैव अ हार्ट अटैक. Okay, so first when we look at a person who is 30 and plus, a female 30 years and plus, and if उनके father को mother को किसी को early हुआ है, then उनको दो ये हो सकता है, उनको हार्ट अटैक हो सकता है. सेकंड, अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपका मेल फीमेल डिफरेंस मेनोपॉजल वाला खत्म हो जाता है. करेक्ट हाँ. देन द रिस्क फैक्टर इज इक्वल. आप डायबिटिक हैं और आप फीमेल हैं तो आप में और एक मेन में सेम है रिस्क फैक्टर्स. एंड पोस्ट मेनोपॉजल अगर हम जाते हैं, देन आर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इज वेरी मच, एंड देयर इज ऑल्सो आयोटिक स्टेनोसिस, दैट इज वेरी मच. एंड ऑल्सो देयर आर हम जब देयर इज अ डिजीज कॉल्ड रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो इंडिया इज एपिडेमिक ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज. इंडिया में जितना रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है उतना पूरे वर्ल्ड में नहीं होता है. एंड दैट टारगेट्स योर वैल्व्स. वो आपके वैल्व्स को खराब करते हैं एंड उसका फीमेल टेंडेंसी ज्यादा होता है. तो हमें ये भी एक माइंड में रखना चाहिए. एंड मोस्टली व्हेन विमेन आर प्रेग्नेंट, देन दे आर फर्स्ट टाइम डायग्नोस्ड विद रूमेटिक हार्ट डिजीज, क्योंकि उसके पहले वो सांस फूलने को इग्नोर कर देते हैं और ये समझते हैं कि एनीमिया होगा या फिर I think women's symptoms are ignored. Correct. So that is why we really need to, talk about it. Yes, yes. तो ये जो women है इनको mostly symptoms कैसे होते हैं? अगर हम कहते हैं कि आपको कोई कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कौन से सिम्टम्स है जो रोजमर्रा की लाइफ में होंगे जिसको हमें लगता है शायद ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो हार्ट डिसीज हो सकता है? ओके, सो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ हार्ट अटैक, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ऐसे छाती पकड़ी हुई है किसी ने एंड ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी डीप पेन एंड इट्स लेफ्ट साइड में हो रहा है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है. लेकिन ये है, इट्स अ ड्रामेटिक मैनिफेस्टेशन. मेन में ये हो सकता है, मेन में भी एटिपिकल होते हैं, बट फीमेल्स में दिस क्लासिकल सिम्टम इज वेरी वेरी रेयर. तो फीमेल्स में सांस फूलना कैन बी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, कि जल्दी थक गए, बहुत जल्दी सांस फूल गई, बैठ गए, ठीक हो गया, फिर खड़े हुए, फिर काम करने लग गए. एंड उनको लग रहा है कि ठीक है, मेरी हार्मोनल साइकिल की वजह से हो रहा होगा या मेरे मेनोपॉज की वजह से हो रहा होगा. एकदम से कोल्ड स्वेटिंग हो गई. ऑन अ विंटर डे यू आर फीलिंग स्वेटी एंड देन आप उसको हॉट फ्लशेस से कंफ्यूज कर सकते हो कि आपको मेनोपॉजल हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, लेकिन दैट माइट नॉट बी जस्ट हॉट फ्लशेस. या एंड आप पैल्पिटेशंस हो सकते हैं आपको, एंड अर्ली फटीग, एंड इट कैन बी बैक पेन, इट कैन बी जॉ पेन. तो जॉ पेन को भी हम डेंटल प्रॉब्लम समझ सकते हैं, but it can be a heart attack. Correct. So heart attack does not scream in women, it whispers. Or Indian women have tolerance level that high. Correct. So ये छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं. And always ask for help. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी सांस फूल रही है, ठीक नहीं हो रही है, all your blood reports are normal, so ask them to do a ECG, ask them to do a echocardiography. So these are two things which you should not hesitate to ask the doctor if they don't think about it. जी जी. ऐसा कुछ है जिससे पता चले कि नहीं, दिस इज नॉट नॉर्मल, लाइक ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा कोई साइन, स्पेसिफिक साइन है कि ये तो इग्नोर नहीं करना है, ऐसे कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि जैसे आप पहले आराम से कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, नीचे दूध लेने गए, आप ऊपर आए एंड यू आर एबल टू, मतलब दोज फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आप आराम से चढ़ गए. लेकिन अगर आपको अचानक से सांस फूलने लग गया है, एक में ही आपको रुकना पड़ रहा है,
सो दैट कैन बी अ नंबर 1 अलार्मिंग साइन। और अगर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल चल रहा है और आपने स्वेटिंग आपको बार बार हो रही है, सो दैट कैन बी वन साइन। एंड यू शुड चेक योर ब्लड प्रेशर। इफ योर ब्लड प्रेशर इज शूटिंग एंड वेरिंग, सो दैट कैन बी वन साइन। और आप नॉर्मली नहीं थकते थे, आप जैसे जिम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप वॉक कर रहे हैं, आप 30 मिनट्स तक नहीं थक रहे हैं, अभी आपको रुकना पड़ रहा है, ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो आप उस चीज को और कुछ ना समझ के एक बार हार्ट की तरफ जरूर सोचें और एक हेल्प जरूर लें। एंड आजकल आई थिंक आफ्टर कोविड यू कैन लिटरली ऑर्डर अ blood test on your phone. Correct, हाँ. And the person will come to your home and get it done. Correct. तो एक बेसिक चीज है जो हमें हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ पे लोगों को खुद ही ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली। ऐसे कौन लोग हैं जो रिस्क फैक्टर्स में आते हैं? जैसे आपने एक बताया कि प्रेगनेंसी में अगर कुछ हुआ है तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ होने के चांसेस है। यंग एज में आप पीसीओएस है तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ लिपिड प्रोफाइल रिलेटेड कुछ आ सकता है। और कोई रिस्क फैक्टर्स है जिनको, क्योंकि फिर आई एम गोइंग टू आस्क यू कि अगर ये रिस्क फैक्टर्स है, विल लिस्ट इट डाउन, तो कौन से इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं जिससे हमें अर्ली पता चले कि कोई कार्डियक कंडीशन है या नहीं है? सो फर्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। जी। What to look for in a family history? फैमिली हिस्ट्री का मतलब है कि किसी को हार्ट अटैक आया हो आपके मदर फादर या उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में जी। या फिर उनकी किसी की सडन कार्डियक डेथ हुई हो। तो सडन कार्डियक डेथ पता नहीं है क्या हुआ, अचानक नींद में उठे नहीं, जी, ठीक है, या फिर कुछ हुआ गिर गए, डिड नॉट वेक अप। तो ये हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ हार्ट में कोई कंजेनाइटल या फिर कोई मतलब बनावटी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है, जी, हाँ. जिसमें सडनली हार्ट रेट इतनी बढ़ जाती है कि हार्ट पंप नहीं कर पाता एंड विद इन सेकेंड्स और इसके लिए भी हमारे पास प्रिवेंटिव थेरेपीज हैं। तो अगर आप टाइमली आए तो दिस कैन बी ट्रीटेड। सो दिस इज फैमिली हिस्ट्री। एंड सेकेंड वी गो फॉर आपका पूरा रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। आपका पीरियड्स रेगुलर था या नहीं था, सो दैट इंडिकेट्स टुवर्ड्स पीसीओएस। एंड देन इफ यू हैव टेकन एनी इनफर्टिलिटी मेडिसिन, सो दैट ऑल्सो पोजेस यू क्योंकि आप अपने आप को हार्मोनल स्ट्रेस के थ्रू लेके जा रहे हो। जी, करेक्ट। तो उसकी वजह से भी इन योर लेटर ईयर्स यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग। एंड देन प्रेगनेंसी, अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी है, कुछ नहीं हुआ है, देन इट इज गुड। लेकिन अगर आपको ज्यादा सांस फूली है या फिर आपका उस टाइम पे एको में कोई प्रॉब्लम आई है या ईसीजी में कोई वेरिएशंस आए हैं, बीपी हुआ है, डायबिटीज हुई है, then you should ask. And then next, if you are a diabetic, hypertensive, अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम है या आपको थायराइड का इशू है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही, तो भी आपको जरूर से अपनी हार्ट को भी चेक करवाना चाहिए। जी जी, इसका मतलब everybody is at a risk, अगर देख सकते हो Yes, आप। and now, so that is what I recently read it and I've posted on my LinkedIn also, that 1 in 3 women, they die of heart disease. Oh. So the death of 1 in 3 and it's 1 in 30 in case of a breast cancer. So that is how important it is. Correct. So we have this monthly, self-breast examinations for breast cancer. We have pap smear for a cervical cancer. लेकिन अगर हम दोनों की भी mortality जोड़ लेना तो भी हार्ट से कमी है। कमी है, oh wow. क्योंकि हम, जैसा आपने भी पॉइंट आउट किया, the symptoms are very vague. तो अब वो आप चेस्ट पेन नहीं है तो हार्ट अटैक नहीं है वाला कॉन्सेप्ट हमें आई थिंक मेन विमेन दोनों में ही दिमाग से निकाल देना चाहिए। करेक्ट। और प्लस हमारा लाइफस्टाइल, नाउ वी आर जगलिंग बिटवीन आवर फैमिलीज एंड आवर वर्क, वी हैव टू बी बेस्ट एट बोथ प्लेसेस। इन दैट सिचुएशन देयर इज अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो। सो मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये दो चीजें भी हैं जो कि विमेन में दे आर नॉट एक्नॉलेज्ड, but they increase the hormones in your body that eventually affects your heart. तो ये सब तो आप वही कह रहे हैं कि that is my 1 in 3 statistics and that is not my statistics, that is American Heart Association statistics. Wow. And in India also 40% of women die of heart disease. That is like 4 in 10. And there is also one more statistics that आदमी को हार्ट अटैक आया और एक औरत को आया। So 1 year mortality, that means even after surviving that heart attack, 1 साल में men will die less and women will die more. Okay. So it's better to catch that evil early. But क्यों मतलब why 1 year mortality is higher in women?
बिकॉज एक तो सोशल फैक्टर्स हैं, देयर आर सोशल फैक्टर्स दैट यू आर प्रेजेंटिंग लेटर. आदमी ब्रेड अर्नर होता है एंड उसका ध्यान एक औरत रख, सो वो जल्दी लेके चली जाएगी, बट विमेन अपनी प्रॉब्लम्स बताते नहीं है. सो प्रेजेंटेशन इज लेटर इन विमेन, तो जब तक वो आते हैं तब तक हार्ट मसल डैमेज हो जाती है. सो टाइम इज मसल, आप जितना जल्दी आएंगे उतना आपका हार्ट सेव हो जाएगा. तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, प्लस हॉर्मोन्स एंड देन हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नो, विमेन कंसिडर इट सेल्फिश if they take care of themselves. True. But ladies, you should understand you are backbone of the family. I know. आपको खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सबका रख पाओगे, वरना आप नहीं रख सकते. हाँ, और खुद का भी तो रखना चाहिए. Let them call us selfish, but खुद का ध्यान. Yeah. But people, women tend to ignore themselves even, We also, if I go back in my life, if you think, we also must have done that at some point. Mm-hmm. Definitely. Yeah. So, and also this is for all the men out there, all the brothers, all the sons, all the husbands, and all the fathers. And you should also, take your spouse or your female in the family for a regular health checkup. If you are going to visit a doctor, take her along. What is the problem? Correct. तो अगर रेगुलर हेल्थ चेक की बात करते हैं तो किस एज से इंसान ने एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए और हाउ फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? So as soon as you turn 30, in a women, it's only women right now. As soon as you turn 30, you should get a basic blood work done. आपको आपका CBC कराना चाहिए, आपको आपका लिपिड प्रोफाइल, दैट इज कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए, आपको आपका HbA1c करवाना चाहिए, एंड आपको आपका रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए. दैट इज अ बेसिक ब्लड वर्क. एंड इफ यू आर 40 और 45 या आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी रही है, फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी की या कुछ, या आपको PCOS है, या फिर कोई सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, देन 2 more important टेस्ट फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ECG एंड इको. ये 2 चीजें आपको करवानी चाहिए. ये हमारा एक बेसलाइन है, मतलब आप जैसे ही आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप किसी भी एज के हो, आप करवा लो. करेक्ट. एंड अदरवाइज आप 30 के हैं तो आपको करवाना ही है. यू शुड नो योर नंबर्स, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या ट्रेंड चल रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है. एंड देन फ्रीक्वेंसी है इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने अपने इतने रिस्क फैक्टर्स की बात करी, कुछ भी नहीं है, तो देन इट्स अ 5 year फ्रीक्वेंसी. ओके. लेकिन अगर कुछ है, सो देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर डॉक्टर सजेस्ट, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम और इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री, तो फिर आप 2-3 साल में करवा सकते हैं. अच्छा. ओके. लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं है, देन 5 years इज फाइन. ओके. बट आप बीच में यू शुड नॉट इग्नोर ऑल द सिम्टम्स व्हिच वी हैव टॉक्ड अबाउट. ओके. ये सब हमें करते ही रहना चाहिए. ये हमारे लिए इट्स लाइक अ आई ओपनर फॉर अस. और अगर कुछ भी चीजें डिरेंज होती हैं, डोंट हेजिटेट टू गो टू अ डॉक्टर. नहीं, वो तो जाना ही है, राइट, कि अगर रिपोर्ट आ रहा है तो अगर है रिपोर्ट और उसमें कोई चेंजेस है तो लोग दोस्तों को दिखा देते हैं, जो पहचान के डॉक्टर है उनको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं. स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते. इट टेक्स 1 कंसल्टेशन, राइट. कितना आपको 500, 1000, 1500 उतना ही है. एक कंसल्टेशन करा लो, डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखा लो, कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ डीरेंज वैल्यूज नहीं, उसका कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोग देखते हो, जो हर एक नॉर्मल डॉक्टर ना देख सकेगा, वो कार्डियोलॉजिस्ट. और फिर हम आपको बता सकते हैं कि क्या फर्दर टेस्ट आपको कराने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका लिपिड प्रोफाइल है, अब लिपिड प्रोफाइल में आपकी रिपोर्ट में LDL की नॉर्मल वैल्यू 100 लिखी है. करेक्ट. आपको लगा मेरा तो 90 है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. बट 90 ठीक नहीं है अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, और 90 ठीक नहीं है अगर आपको डायबिटीज है. तब आपको रखना है 70 से कम. तो अब ये सब चीजें, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, जिनको भी फैमिली हिस्ट्री है या फिर ऑल द रिस्क फैक्टर्स, PCOS, प्रेगनेंसी, इनको आफ्टर अ सर्टेन एज एक बार उनको डॉक्टर को एज अ प्रिवेंशन दिखा देना चाहिए, ताकि उनको अगर कोई मेडिसिन की जरूरत है, एक गोली का लाइफ टाइम कॉस्ट और ट्रीटमेंट का कॉस्ट, द गोली का कॉस्ट इज लेस एंड द इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट इज लेस, प्लस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन योर फैमिली, द इमोशनल, ये सब चीजें आप बचा लोगे अगर आप टाइमली चीजें कर लो. क्योंकि मेडिकल साइंस इज रियली एडवांस नाउ and you have all the information on your fingertips, but unfortunately there is wrong information also. तो आपको listen to the people
who are trained in that speciality. Correct. Yes. वो बहुत important है. Check the credentials of the person you are actually following. Yes. कि दवाई नहीं लेने का ऑप्शन हमें बहुत वो एंटरटेन करता है कि नहीं हमने बिना दवाई के ठीक कर दिया. लेकिन दैट इज नॉट द रियलिटी. करेक्ट. और इसीलिए अगर आप देखें तो हेल्थ कम्यून में वी कॉल इट फिजिशियन लेड बट एक्सपर्ट ड्रिवन कन्वर्सेशंस. एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर को पूछ रहे हैं जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, वी हैव टू आस्क द टफ क्वेश्चंस. Also we have to ask the questions which will help patients to take decisions for their health, right? ताकि कुछ impact बने, ताकि कुछ decision ले सके खुद के लिए. तो you are absolutely right. और एक चीज बहुत अच्छी मुझे याद आई when you were explaining कि काफी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और उन डॉक्टर्स की डिग्री भी नहीं पढ़ते, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी रहती है कि उन्होंने कौन सा एजुकेशन लिया, MBBS, MD है, DM है. और वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बेसिक कोई भी बीमारी के लिए कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जा सकते. आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है तो वहां जाना चाहिए. एक चीज मुझे आपको पूछनी थी कि कौन से इन्वेस्टिगेशंस रूटीन में कराने चाहिए, और उसमें अगर डी रेंज है तो फिर आपने कहा कि फिर डॉक्टर कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि और कोई एडवांस इन्वेस्टिगेशंस करना है या नहीं है. तो ऑल द CBC, लिपिड प्रोफाइल, ECG एंड इकोकार्डियोग्राफी इज व्हाट वी आर, एंड HbA1c also. HbA1c. तो इतना तो कराना ही है सबको, इतना तो कराना ही है जी. और उसके बाद फिर डॉक्टर्स हिस्ट्री पता चलेंगे और आपके बाकी सिम्टम्स क्या है, फिर कंपेयर करके बताएंगे कि और एडवांस इन्वेस्टिगेशंस करना है या नहीं करना है. करेक्ट. अच्छा, तो अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस है जिसमें बायोमार्कर्स ले लीजिए या कोई ऐसे डायग्नोस्टिक जिसमें आपको बहुत पहले, जैसे कैंसर जेनेटिक्स वी नो कि हमें बहुत पहले पता चल जाता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इन लाइफ. ठीक है, तो वैसे कार्डियोलॉजी के लिए ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है जिससे हमको बायोमार्कर्स या कुछ है, या सम स्कैन्स, एनीथिंग जिसमें हमें बहुत पहले पता चले कि हाँ मुझे शायद हो सकता है कि मैं रिस्क फैक्टर में ज्यादा हूँ. हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. तो एक तो अगर फीमेल्स में अब हम पूरा एज इन टोटो देखें तो HSCRP, हाई सेंसिटिव CRP, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट प्रिडिक्ट्स इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन से फिर आगे जाके कोई हार्ट डिजीज का चांस है कि नहीं है वो पता चलता है. तो HSCRP इज नंबर 1, एंड देन इज lipoprotein A. Lipoprotein A also predicts your atherosclerotic cardiovascular disease का risk. And then apoproteins. So apoproteins also predict the risk factor of a future heart disease. And I think echo is also a good preventive thing. If you have abnormal structural heart disease, कुछ भी है, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में वो पकड़ सकती है फ्यूचर में कोई स्टेनोसिस होगा या नहीं होगा, या फिर आपका कोई कंजेनाइटल हार्ट में कोई पैसेज बना हुआ है, जैसे दिल में छेद हम जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, जो कई बार मिडिल एज में प्रेजेंट करता है. तो ये सब चीजें भी इको पे पकड़ी जा सकती हैं. ओके, मोटा पूछ रही हूँ, मतलब वो तो काफी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है. अप्रोक्सीमेटली अगर ये सारा हमको पैनल करना है तो कितना एक्सपेंसेस आते हैं, और वो इंश्योरेंस में कवर्ड रहता है? सो इंश्योरेंस प्लान्स आई थिंक 2 तरीके के होते हैं. कुछ एक में तो प्रिवेंटिव, आपका साल भर का एक OPD चेकअप और एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज एनकरेज्ड ऑल्सो, क्योंकि इससे आई थिंक इंश्योरेंस वाले भी डेटा निकाल लेते हैं कि आपको बाद में कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देन दे कैन इंक्रीज योर प्रीमियम. सो when I was taking my insurance plan, so there was this caveat in that if you do a preventive blood screen, then we will waive off itna percentage of your premium. But when I really thought of it as a doctor, so they are predicting your risk. Correct. Initially they will decrease the premium, but eventually they know that you are at risk, so they might increase it also. But that is how we can get a preventive thing done. तो ये साल का एक तो कुछ इंश्योरेंसेस में भी होता है, and then cost is very different, you know, all over the country and even in the same city. So if you do in a government health setup, it is absolutely maybe in hundreds, or but if you get a blood work done, so it's अगर आप ये सब हाई जीन्स वगैरह कराते हो तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 के हो जाते हैं, जो भी हमने बायोमार्कर्स की बात करी है. लेकिन अगर हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपीज ओनली द लिपिड प्रोफाइल. इफ यू गेट अ complete health checkup, it is 2,000 to 3,000 rupees. And एक और important टेस्ट है प्रिवेंटिव, CT कैल्शियम स्कोर.
तो सीटी कैल्शियम स्कोर करा सकते हैं। सीटी कैल्शियम स्कोर का भी रेंज, द कॉस्ट इज अराउंड 5,000 to 10,000. So CT calcium score tells you, it's like taking a photograph of your heart, और वो बता देता है कि कोई कैल्शियम डिपॉजिट तो नहीं है आपकी कोरोनरी आर्टरीज पे। अगर है, इसका मतलब है कि आपको रिस्क है। और आपका 0, तो कैल्शियम स्कोर आपका कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 1, 2, 3 भी नहीं होना चाहिए। Okay. अगर है तो आपको दवाई लेनी है, अच्छा, या आपको आगे टेस्ट कराने हैं। जी, तो सीटी कैल्शियम स्कोर इज वन टेस्ट टू ओके, प्रिडिक्ट। करेक्ट। और अगर गवर्नमेंट सेटअप में है तो काफी लो कॉस्ट में हो जाता है। Yes. हाउ टू सिलेक्ट कि कहाँ पे जाके ये इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए? यस, सो आइडियली अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, अगर आपने मतलब, तो आपको सबसे पहले तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और फिर वो ही टेस्ट करवाने चाहिए जो उन्होंने बोले। जी, हाँ। आप फालतू के 10 टेस्ट करवा लोगे, उससे आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, एंड देन आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा नहीं, आप ये भी करा के लाओ। हाँ, फिर ये होगा, अरे डॉक्टर्स को तो टेस्ट ही कराने होते हैं बस। जी। सो यू हैव टू आस्क फर्स्ट। अगर आप अपना रूटीन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहे हो, देन यू कैन गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पैकेज। तो उसमें आपका थायराइड, शुगर, ये सब, विटामिन B12, D, ये सब चेक हो जाता है। Correct. तो अगर आपको कुछ हिस्ट्री नहीं है, रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आप फिर रूटीन वाला कहीं से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क पर आते हैं, तो आपको पहले डॉक्टर से पूछना चाहिए, ताकि आपका टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगा, एंड ऑलवेज मतलब कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट सो दैट यू गेट ऑल द टेस्ट डन विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। करेक्ट, हाँ। और एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर से पहले कंसल्टेशन करा लीजिए, फिर वो जो बताएंगे वो इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए। तो ना वो कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल नहीं है। मेट्रो सिटीज, बिगर सिटीज आर ब्लेस्ड, बट अगर मेरे गांव में तो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत दूर तक अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे लेकिन 5G हर जगह अवेलेबल है, वो स्मार्टफोन हर जगह अवेलेबल है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर हम करते हैं किसी डॉक्टर के पास, जैसे मैं अगर गाँव में हूँ और मैं आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करती हूँ जिसमें हिस्ट्री टेकिंग सब कुछ हो जाए, तो पॉसिबल है कि आप इन्वेस्टिगेशंस बताएं और मैं लैब से करा लूँ? हाँ जी, दैट इज वेरी इजी। क्योंकि अगर मेरे को लगेगा कि आपको थोड़ा रिस्क है, तो मैं आपको बोलूंगी ECG करवा लीजिए, आप मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए। मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपसे पूछूंगी जो सवाल मुझे आपके एज और आपकी हिस्ट्री के हिसाब से पूछने हैं, उसके हिसाब से मैं आपको टेस्ट बता सकती हूँ, और आप वो कहीं से भी करवा सकते हैं। तो आजकल बहुत ज्यादा जो लैब का, वो जो लैब वैल्यू का डिफरेंस है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हमें कोई अलार्मिंग वैल्यू दिखेगी कि ये तो बहुत ही ज्यादा है या ये बहुत ही लो है, तो हम ये भी बोल सकते हैं, और हमें लगा कि देयर इज अ इशू इन रिपोर्टिंग, तो हम ये बोल सकते हैं आप सिर्फ ये वाला टेस्ट एक बार रिपीट करवा दीजिए। ओके, करेक्ट, हाँ। तो उसके लिए हमें भागने की जरूरत नहीं है इधर उधर, या फिर हमें बड़े सिटी में ही जाना है और वहीं कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, एंड इट इज टेली कंसल्टेशन इज कमिंग अप इन इंडिया ऑल्सो। और जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसकी गाइडलाइंस भी हैं दैट यू कैन टेक इट, एंड फॉर डॉक्टर्स एंड फॉर पेशेंट्स एवरीथिंग। एंड जो रिकॉर्ड है, देन मेडिकल रिकॉर्ड इज मोर डिजिटाइज्ड। करेक्ट, हाँ। कि वो आपके पास फोन में रहता है आपके, तो आप कहीं और भी गए तो दिखा सकते हैं डॉक्टर को। करेक्ट। और वो आसान है, मतलब जितना कॉम्प्लिकेट करके रखा है हम लोगों ने कि जाना है, ब्लड देना है, इन्वेस्टिगेशंस कराना है, इतना सारा सोच के कॉम्प्लिकेट करा के होता ही नहीं है कोई। उससे अच्छा है आप डॉक्टर से कंसल्टेशन करा के, जस्ट लाइक आई थिंक इट्स अ 3 days प्रोसेस, राइट? आप कॉल कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, दैट्स इट। 2-1.5 दिन इन्वेस्ट करना है आपको। और एक चीज पूछनी थी कि आप इंस्टाग्राम पे वगैरह देखते हैं कि काफी सारे आजकल ऐप बने हैं जो बताते हैं कि आप डाउनलोड करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद आपकी कार्डियक रिस्क कितनी है वो पता चलेगी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक ASCVD रिस्क स्कोर बनाया हुआ है, बट अभी जहां तक इंडियन रिस्क की बात है, तो इंडियंस का खाना अलग है, हमारा जेनेटिक्स अलग है, एंड हमारा जो प्रेजेंटेशन है किसी भी बीमारी का, हार्ट की, वो 10 years यंगर टू अ अमेरिकन है। तो जो हमारा रिस्क स्कोर है, वो अभी तक इतना वेल रिसर्च्ड और वेल पुट आउट नहीं है। एंड आई थिंक आफ्टर कोविड देयर हैज बीन अ एपिडेमिक शिफ्ट, क्योंकि जिन लोगों को कोविड हुआ, उन लोगों की बॉडी में देयर वर सम चेंजेस विच आर स्टिल बीइंग स्टडीड, जिससे उनको हार्ट रिस्क पे और ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से वो दे आर प्रिडिक्टिव, हो सकता है वो एब्सोल्यूट रिस्क जो कि वर्ल्ड वाइड कॉमन है वो आपको बता सकते हैं दोज एप्स, बट स्टिल चैट GPT पे भी आप अपने सिम्टम्स डालते हैं कि हमें ये हो रहा है, अब हम क्या करें।
उसके बाद आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट और दीजिए, बी वेल रिसर्च्ड एंड गिव मी अ राइट आंसर। कई बार चैट जीपीटी इज ऑल्सो नॉट राइट। तो आप ये सब, पहले हम गूगल से परेशान थे एज डॉक्टर्स, और अब हम चैट जीपीटी से परेशान हैं। बट ठीक है, जस्ट आज चैट जीपीटी शुड आई आस्क फॉर हेल्प और नॉट, एंड वो आपको बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देगा। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर उसने बोला पूछ सकते हैं तो पूछिए जी, करेक्ट। क्योंकि ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाएगा। नहीं, वो कर नहीं सकता ट्रीटमेंट। अच्छा, तो सोच लीजिए कि किसी ने इन्वेस्टिगेशंस करा लिए हैं और नॉर्मली किस टाइप का केयर लेना पड़ता है? मतलब मेडिकेशंस लेनी है, कंप्लीटली लाइफस्टाइल चेंज करनी है? मैंने देखा है कि विमेन का स्पेशली क्यों, वन ऑफ द साइकोलॉजी दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि अगर डॉक्टर के पास आज आ गए, चले गए, अगर कुछ डायग्नोस हो गया तो पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, है ना? ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ये नहीं, जहाँ से नहीं जा सकते। तो व्हाट आर द इमीडिएट थिंग्स वी हैव टू डू अगर कुछ लाइफ इन्वेस्टिगेशंस में कुछ डिफरेंस आता है तो? ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशंस में सबसे अच्छी बात जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जो एक हार्ट पेशेंट के लिए गाइडलाइंस है ना, वो ही हमारे लिए भी हैं विदाउट हार्ट पेशेंट्स। मीठा कम खाना है, तला भुना कम खाना है, रोज वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है। ये सब मेरे को हार्ट डिजीज नहीं है तो भी मेरे लिए सही है, और मेरे को हार्ट डिजीज है तो भी मेरे लिए सही है। तो आइडियल लाइफस्टाइल प्रिवेंशन की और ट्रीटमेंट के बाद की सेम है, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो हमारे ट्रीटमेंट्स हैं आजकल, आपको एक गोली ऐड होगी आपकी लाइफ में अगर आप टाइम पे आ गए तो, एंड वो आपको सोने से पहले खानी है। वो भी ऐसे नहीं है कि दिन में आपको याद रख के खानी है। तो मोस्ट कार्डिक मेडिसिन आर बिफोर स्लीपिंग। ब्लड थिनर्स है तो हम कहते हैं सोने से पहले खा लो, एस्पिरिन है, कोई स्टैटिन है, तो वो भी आपकी कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करती। सेकंड, अगर आपको स्टेंट डल गए या आपको पेस मेकर डल गया या आपका वाल्व चेंज हो गया, देन ऑल्सो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। आप ड्राइव कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली स्मोकिंग शुड नॉट बी देयर, अल्कोहल शुड नॉट बी देयर, एंड दीज थिंग्स शुड नॉट बी देयर अदरवाइज ऑल्सो। द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट हार्ट ट्रीटमेंट इज कि हम हमारे आसपास इतने ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको स्टेंट डला हुआ है और हमें पता ही नहीं उनको स्टेंट डला हुआ है। करेक्ट। क्योंकि दैट इज नॉट डिसेबलिंग। जो न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, उनको रिपीटेड डायलिसिस कराना पड़ता है, या न्यूरो में किसी को लकवा हो गया, तो वो सब चीजें हैं, वो डिसेबलिंग है। लेकिन हार्ट का ट्रीटमेंट ऐसा है कि ट्रीटमेंट के बाद आपकी लाइफस्टाइल में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। आप ऑफिस जा रहे थे कल तक, आज भी चले जाइए। यू कैन बिकम मदर्स, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। देर आर वेरी फ्यू कंडीशंस, वेरी 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 फ्यू कंडीशंस जिसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकते। हम मना करते हैं कि मत करिए, लेकिन आजकल उसके भी ऑप्शंस हैं। यू कैन गो फॉर सरोगेसी एंड यू कैन स्टिल बिकम मदर्स एंड यू कैन टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड ऑल योर लाइफ। करेक्ट। एंड तो ये सब चीजें, सो हार्ट इज अ वेरी ब्यूटिफुल ऑर्गन एंड विच विस्पर्स, इट डज नॉट स्क्रीम, सो यू हैव टू हियर दैट विस्पर एंड जस्ट करेक्ट इट, ताकि वो भी आपका लाइफ टाइम साथ दे सके। करेक्ट। एंड टाइम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ हार्ट पेशेंट। बिफोर वी क्लोज आवर कन्वर्सेशन, मुझे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है आपसे, हार्ट अटैक। अभी देखते हैं हम लोग, काफी सारा न्यूज में देखते हैं कि यंग पीपल आर डाइंग बट मेन ना डाइंग। एटलीस्ट न्यूज में विमेन का नाम दिया नहीं है नाम। और दूसरा ये कि जिम गोअर्स जो है या ऐसे, उनका मेन का ये है, क्या विमेन पे इफेक्ट नहीं हो रहा है या फिर वो न्यूज में नहीं आ रहे हैं? If you remember, एक there is a clip which suddenly came in my mind. एक लड़की स्टेज पे डांस कर रही थी at a wedding. She collapsed, she died. So she's a girl, and she was looking young. She must be in her 20s, 30s. There is a thing, women में heart attack because of block at a younger age is less common. लेकिन अरिदमियाज का मतलब है दिल के धड़कन का प्रॉब्लम। करेक्ट। दिल की धड़कन कम हो जाना या बहुत बढ़ जाना, इससे सडन हार्ट कार्डिक डेथ हो सकती है। तो सडन कार्डिक डेथ का प्रेवलेंस में जेंडर बायस नहीं है, वो दोनों में हो सकता है। पर लाइक यू से कि हमारे दिमाग में पहले जिम गोअर मेन ही आते हैं, एंड पर विमेन में भी हो सकता है। और इसका प्रिवेंशन आपको अपनी फैमिली के डिग रूट्स में जाना पड़ेगा कि अगर हो सकता है कि उसको ऐसी कोई कंडीशन रही हो, देर बहुत सारी जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज होती हैं जो मिस हो जाती हैं, पता नहीं चलती हैं, तो ये सब चीजों के लिए हमको देखना पड़ेगा।
Okay, we lost one of our very close friend due to heart attack. और उनका एंड वी हियर दी स्टोरीज एवरीवेयर कि ट्रैवल करके आए, सुबह अनईजी फील हो रहा था, उसके बाद में थोड़ा सा इनो वगैरह पी लिया क्योंकि लग रहा कि घर घबराहट है, और थोड़ी देर के बाद द पर्सन वाज नो मोर, और फिर माइकार्डियल इन्फेक्शन ऐसे करके उनका डायग्नोसिस हुआ है. नाउ ऐसी इसमें कितना टाइम है हमारे पास? जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, और लेकिन वार्निंग साइंस होते हैं, 1-1.5 घंटे पहले पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग. तो हमारे पास एक्चुअली कितना टाइम है और क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो आपको हमें वो 2 घंटे पहले के वार्निंग साइंस ध्यान है, उसके पहले को हम गैस समझते हैं। वो पहले से आ रहे होते हैं, लेकिन इंडियन माइंडसेट गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। खाना खा के बदहज़मी हो गई, तो आप टहलने निकल गए, टहल के बड़ी बैठे थोड़ी देर ठीक हो गई, तो ये गैस हो सकती है। और ये मतलब इसको गैस समझ के हम एक पैंटोसिड की गोली खाते हैं और फिर हम रेस्ट करते हैं, बट आइडियली पैंटोसिड नहीं काम कर रही है, वो रेस्ट काम कर रहा है। क्योंकि हार्ट क्या करता है, जब हार्ट पंप ज़्यादा करता है, हार्ट कब पंप ज़्यादा करेगा, जब आप मेंटली स्ट्रेस में होंगे या फिजिकली स्ट्रेस में होंगे, मतलब आप वॉक कर रहे होंगे या फिर आपको एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप किचन में काम कर रहे हो, आप बाल्टी उठा के ला रहे हो या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है जो हम भूल जाते हैं, खाना खाना। जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है खाने को पचाने के लिए। करेक्ट, हाँ. तो ये सिम्टम खाना खाने के बाद आ सकते हैं, और स्पेशली उन लोगों को मैं बोलती हूँ बहुत ध्यान से इस चीज को सुने, जो कि हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जिनकी मोबिलिटी लिमिटेड है, जो चल फिर नहीं रहे हैं, उनके जो हार्ट के सिम्टम्स हैं वो खाना खाने के बाद ही आएंगे। इसका साइंटिफिक टर्म है पोस्ट प्रांडियल एंजाइना। तो इस कंडीशन में अगर उनको खाना खाने के बाद ऐसे सीने में जकड़न हो रही है या फिर पसीने आ रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है लेकिन सांस में दिक्कत हो रही है, पेट में मतलब यहाँ पे स्पेशली एपिगैस्ट्रिक एरिया में, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो भी खाना खाने के बाद, तो हमको खाना प्लस डिस्कम्फर्ट इक्वल्स टू गैस। बट नो, दैट इज नॉट इक्वल्स टू गैस। तो गैस तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस चीज को, वो चीज बार बार हो रही है, तो आप एक बार अपने हार्ट को चेक करवाइए। एंड ऑल्सो हार्ट में 2 चीजें हो सकती हैं इन दिस एज ग्रुप। एक तो हो सकता है हार्ट का ब्लॉक, दूसरा हो सकता है आपका वाल्व का ब्लॉक, कि हार्ट वो चीज पंप तो कर रहा है लेकिन वाल्व हमारे हार्ट के दरवाजे जैसे होते हैं, जो आफ्टर अ टाइम खुलने बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो वो पंप बेचारा कोशिश तो कर रहा है बाहर करने की, लेकिन कर नहीं पा रहा है, और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है आजकल। तो ये सब चीजें बस, क्योंकि देर आर एटिपिकल सिम्टम्स, वेग सिम्टम्स, इस वजह से हम उसको गैस समझ लेते हैं, और फिर फाइनली जब वो इवेंट होता है तब हम उसको सडन बोल देते हैं। करेक्ट. लेकिन वो सडन नहीं है। तो इसीलिए द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, डिगिंग इन योर फैमिली हिस्ट्री, एंड जस्ट लाइक दैट, ठीक है एक दिन आज हमारी छुट्टी, आज हम क्या करें, आज हम चलो डॉक्टर को दिखा के आ सकते हैं, ताकि हम नई जगह जाएंगे, नए घूमने जाएंगे, उससे अच्छा, क्योंकि डेली लाइफ आजकल इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो आपका अगर वर्क डे पे कोई ऑफ है और आपको, तो आप एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो, बेसिक चेकअप करा लो, देन यू आर गुड टू गो। करेक्ट. और जैसे सोच लीजिए कि अगर मैं वो क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहती हूँ, कि सोच लीजिए कोई है इंसान, वुमेन, मैन, एनीवन, उनको वो सिम्टम्स अगर आते हैं कि घबराहट हो रही है, हो सकता है कि पता तो चलता है एक्चुअली, अगर एक इंसान को देखे तो पता चलता है कि ये नॉर्मल एसिडिटी नहीं है, कुछ तो अलग लग रहा है करके। उस टाइम पे उन्होंने क्या करना चाहिए? इज इट लाइक इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, या एटलीस्ट ईसीजी करा लेना चाहिए, या ऑनलाइन कंसल्टेशन कराना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है एक्शन क्या लेनी है वो किसी को पता नहीं है. एक्शन इज ईसीजी। ईसीजी सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, जो कि एट प्रेजेंट जब बहुत डिस्कम्फर्ट है तब ईसीजी होता है। तो अगर आपको, आप ये मत सोचिए कि आपके घर वाले परेशान होंगे, अगर आप सुबह उठे नहीं ना तो वो ज्यादा परेशान होंगे। तो आपको 2 बजे 3 बजे कभी भी सिम्टम हो रहा है, आप एक ईसीजी, आप नियरेस्ट इमरजेंसी में ईसीजी करा लीजिए। कोई बात नहीं, नॉर्मली तो आएगा, और क्या होगा, मैक्सिमम। अगर कोई इश्यू होगा तो वो डील हो जाएगा एटलीस्ट। लेकिन और एक और बात है, ईसीजी इज जस्ट अ फोटोग्राफ। जैसे अभी मैं हाथ ऐसे हिला रही हूँ, आपने मेरी फोटो ले ली, तो उस टाइम पे ईसीजी ने अगर पकड़ लिया तो ईसीजी ने पकड़ लिया। लेकिन सिर्फ अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है
तब भी मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको ईसीजी नॉर्मल है तो आपको हार्ट अटैक नहीं है या हो नहीं सकता। तो तब हमारा जो दूसरा वर्ड हम सुनते हैं माइनर अटैक या माइनर ब्लॉक, तो उसमें ये होता है कि हमें फिर आगे ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं एंड देन द रोल ऑफ डॉक्टर्स कम इन, क्योंकि ईसीजी मशीन जो होती है आजकल ऑटोमेटेड हो गई है, उसके ऊपर ही लिखा हुआ आ जाता है कि ये अटैक है, लेकिन अगर ईसीजी नॉर्मल है तो वो नॉर्मल लिखेगी। करेक्ट, हाँ। फिर क्या प्रॉब्लम है वो फिर डॉक्टर आपका सिम्टम, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम किस टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो बाकी टेस्ट करवाएंगे और हो सकता है वो आपको बोलें कि नहीं आपकी एंजियोग्राफी करानी है। फिर आप सोचते हैं हमारा ईसीजी तो नॉर्मल था डॉक्टर साहब, फिर आप एंजियोग्राफी कैसे कर रहे हो, फिर ब्लॉक कैसे आया है। तो अभी आपके ईसीजी की जब हमने फोटो ली तब वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सो हार्ट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, करेक्ट, हाँ। सो वो चीजें चल रही है अंदर, लेकिन एट दैट पॉइंट व्हेन ईसीजी वाज डन वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब इमीडिएट सिम्टम्स हो रहे हैं तब ईसीजी आपको बता देगा। अच्छा। लेकिन अगर ईसीजी नहीं भी बता पाता है तो आप घर जाइए, सो जाइए, लेकिन फिर आप सुबह जाके डॉक्टर को एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके गेट इट इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया बताया आपने। दो चीजें हम बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मल से थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, जस्ट गेट वन ईसीजी डन। ईसीजी घर के आसपास भी हो जाता है, छोटे मोटे क्लिनिक में भी ईसीजी रहता है, कहीं पे भी नियरेस्ट जो भी अवेलेबल रहेगा ईसीजी करा लीजिए। इनकेस कोई चेंजेस है तो फटाफट जाके ट्रीटमेंट कराइए, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो घर आके आराम से सो जाइए, लेकिन उस दिन डॉक्टर से कंसल्टेशन करा के पूरा ब्लड चेकअप वगैरह करा लीजिए, व्हाट इफ समथिंग इज रॉन्ग एंड इफ यू कैन प्रिवेंट इट। ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर। कमिंग बैक टू द विमेन हेल्थ टॉपिक, जो विमेन हमारा सुन रही है आज का पॉडकास्ट, इनको आप क्या बताना चाहती है एज अ कार्डियोलॉजिस्ट? सो विमेन को मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडीज अलग है हम मेन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी रिस्क पे नहीं है, और हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और हमें छोटे छोटे सिम्टम्स, हमें रेगुलर चेकअप्स कराते रहने हैं। हमें हमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके साथ साथ अपने हार्ट हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हार्ट हेल्थ आर कनेक्टेड, बिकॉज दैट इज हाउ वी आर मेड। और हमारा जो ट्रीटमेंट है, इफ वी टेक द ट्रीटमेंट एट राइट टाइम, देन we can save ourselves as well as the family. Correct. Because we never know how many people are dependent on us until we are not there. Yes. And prevention is better than cure. True, very true. And cure is also there. अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो है ट्रीटमेंट है, तो आप डरे ही नहीं, डोंट बी अफ्रेड, जस्ट डोंट बी अफ्रेड, यू कैन आस्क फॉर हेल्प, एंड दीज डेज एवरीथिंग इज easier I think than what it was 10 years back. Correct. Being a doctor, I am very proud of looking at you, how you are explaining everything. Women cardiologists are very, very important in India, क्योंकि comfort हो जाता है, no matter how much we say about doctors ये वो, लेकिन अगर मुझे अपना ECG कराना है या मुझे अपना एको कराना है, और अगर लेडी डॉक्टर है तो मुझे खुद भी, मैं बीइंग अ डॉक्टर, मुझे खुद कंफर्टेबल फील होगा अगर एक अनदर लेडी डॉक्टर है तो। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि नॉर्मली जाके आप अगर ट्रीटमेंट, आई नो कि डॉक्टर है उनको फर्क नहीं पड़ता, बट हमें तो फर्क पड़ता है जब हम I agree, I absolutely agree. And taking care of the dignity of a fellow female, yes, वो बहुत important है, and women are more sensitive towards it. तो वो चीजों के लिए I absolutely give, I'm a female, I will go to a female doctor. Yes. Because I'll be more comfortable, especially opening up about the reproductive health. आप डॉक्टर को वो चीजें शायद मेल डॉक्टर को नहीं बता पाओ या आपके दिमाग में भी नहीं आए बताने की, लेकिन आप फीमेल के साथ बेटर डिस्कस कर सकते हो, बट इररिस्पेक्टिव आपको मेल के साथ भी करनी है। दैट इज द जिस्ट ऑफ द पॉडकास्ट। करेक्ट। बस बढ़िया है, थैंक यू सो मच डॉक्टर। फिर से आपको डेफिनेटली डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपका टाइम ले सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम।